السلام علیکم ڈیئر ویورز، انوائرمنٹل کیمسٹری کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں ادیب الرحمان۔ انوائرمنٹل کیمسٹری میں ایٹماسفیرک پولوشن کا آج لیکچر نمبر 2 ہوگا، نیچر اینڈ کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈسکس کریں گے کمپوزیشن اینڈ اسٹرکچر آف ایٹماسفیئر کو۔ تو کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر یہ گیسز، واٹر ویپرز اور ڈسٹ پارٹیکلز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ پروپورشن آف گیسز چینجز ان ہائر لیئرز آف دی ایٹماسفیئر، یعنی جو مقدار ہے گیسز کی وہ اوپر والے لیئرز میں ایٹماسفیئر کی، جب زمین سے ہم اوپر جائیں گے تو اس میں ان کی جو کنسنٹریشن ہے، مقدار ہے، وہ چینج ہوتی جائے گی، اس طرح سے کہ آکسیجن ول بی آلموسٹ نیگلیجبل کوانٹٹی، یعنی جب زمین سے اوپر کی طرف ہم جاتے جائیں گے تو آکسیجن کی مقدار کم ہوتے ہوتے تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا 120 کلومیٹر کی بلندی پر۔ بالکل اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر ویپرز یہ بھی پائے جاتے ہیں صرف 90 کلومیٹر کی بلندی تک زمین کی سطح سے، اس سے اوپر جائیں گے تو یہ گیسز بھی کم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ کمپوزیشن آف ایئر دیکھ سکتے ہیں کہ نائٹروجن سے 78% ہمارا ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے، اور دوسرے نمبر پر آکسیجن اس میں 21% کے قریب ہے، اور تیسرے نمبر پر اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر ویپرز، باقی چیزیں 1% کے تقریباً قریب ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پرماننٹ گیسز آف ایٹماسفیئر اور ان کا پرسنٹیج۔ تو نائٹروجن 78%، آکسیجن تقریباً 20.9 یعنی 21%، آرگون 0.93%، کاربن ڈائی آکسائڈ 0.0325%، اور نیون، ہیلیم، کرپٹون، زینون، ہائیڈروجن یہ بہت ٹریس اماؤنٹ میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نائٹروجن کی طرف آتے ہیں۔ تو نائٹروجن جو ہے یہ 78% موجود ہے ہماری فضا کے اندر۔ اب یہ ہماری فضا کے اندر کیا کرتا ہے؟ ڈائلیوٹس آکسیجن، یہ آکسیجن کو ڈائلیوٹ کرتا ہے۔ ہماری فضا میں جو 21% آکسیجن ہے، اگر نائٹروجن نہ ہو تو آکسیجن ہماری پوری زمین کو جلا دے گی، کیونکہ آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے۔ تو نائٹروجن کیا کرتی ہے؟ وہ آکسیجن کو اس جلانے کے عمل سے روکے رکھتی ہے۔ It prevents rapid burning of the earth's surface۔ تو لیونگ تھنگس کو چاہیے نائٹروجن، کیونکہ وہ اس کو پروٹین بنانے میں استعمال کرتے ہیں، امائنو ایسڈز بنانے میں، اور نائٹروجن ڈائریکٹ یوز نہیں ہو سکتا فضا سے، یعنی جو فضا میں N2 ہے اس کو ہم ڈائریکٹ یوز نہیں کر سکتے، نہ پلانٹس، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ نائٹروجن سائیکل کے ذریعے یہ نائٹروجن نائٹریٹس بن کر کے پلانٹس میں جاتی ہے، پھر پلانٹس اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ ہم آکسیجن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آکسیجن جو ہے 21% ہوتا ہے لیونگ تھنگس کے اندر، اور یہ لازمی ہوتا ہے ریسپیریشن، سانس لینے کے لیے، اس کے بغیر نہ پودے سانس لے سکتے ہیں نہ ہی اینیملز۔ البتہ پودوں میں پروسیس کچھ چینج ہوتا ہے اینیملز کے مقابلے میں۔ تو یہ کمبسشن اور یا برننگ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آرگون 0.9% موجود ہے جو یوز ہوتا ہے لائٹ بلبز میں، کاربن ڈائی آکسائڈ تھوڑی مقدار میں، اور یہ پلانٹس میں آکسیجن بنانے میں یا فوٹوسینتھسس میں ہیلپ کرتا ہے، اور یہ ایک بلینکٹ کے طور پہ کام کرتا ہے اور بچاتی ہے ہماری زمین کے ہیٹ کو اسپیس میں جانے سے۔ یعنی اگر کاربن ڈائی آکسائڈ نہ ہو تو ہماری زمین کے جو ہیٹ ہے یہ اسپیس میں چلا جائے، اور زمین راتوں کو بہت اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جائے کہ اس پر زندگی ناممکن ہو جائے۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ اس زمین کو گرم رکھنے میں بھی مددگار ہے۔ سائنٹسٹ خوفزدہ ہیں کہ جو فوسل فیولز ہم جلا رہے ہیں جیسے کوئلہ اور آئل وغیرہ، تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایٹماسفیئر کے اندر اس کی مقدار کو بڑھا رہے ہیں، جس سے یہ گلوبل وارمنگ وغیرہ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ واٹر ویپرز بھی موجود ہیں 0.024%، اور یہ لازمی ہوتے ہیں لائف پروسیسز کے لیے، کیونکہ یہ بھی ہیٹ لاس کو بچاتی ہیں زمین کے۔ اس کے علاوہ سورج سے آنے والی ہیٹ کو ایبزارب کرتی ہیں اور زمین کو زیادہ ہیٹ ہونے سے
या ज़्यादा ठंडा होने से बचाती हैं। और कुछ ट्रेस गैसेस भी मौजूद हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे ओजोन और वाटर वेपर्स की तरफ। तो ओजोन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, और ये पाया जाता है तकरीबन 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी ज़मीन की सरफेस से जब हम 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो ओजोन मौजूद होगा। और ये फिल्टर के तौर पे काम करता है क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेज को जो आ रही होती हैं सूरज से, यानी ये रेज डायरेक्ट ज़मीन पे पहुंच जाए तो कैंसर पैदा करने का वजह बनती है। तो ओजोन इन लेयर्स को रोक देती है। और वाटर वेपर्स वेरिएबल गैस है, यानी मुख्तलिफ इलाकों में वाटर वेपर्स की मिकदार मुख्तलिफ हो सकती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये डिक्रीज होती है एल्टीट्यूड के साथ, यानी जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे तो वाटर वेपर्स की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। इन वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, यानी जो गर्म और जो मोतदिल इलाके हैं जैसे कि हमारा पंजाब है, इस किस्म के इलाकों में इसकी मिकदार 4% तक भी हो सकती है हवा के अंदर, जबकि खुश्क इलाकों में या डेजर्ट्स में या पोलर रीजन्स में इसकी यानी वाटर वेपर्स की मिकदार बहुत ही कम होती है, तकरीबन 1% या इससे भी कम। वाटर वेपर्स कम कर देते हैं, कम होते हैं इक्वेटर पर पोल्स की तरफ, यानी इक्वेटर जो ज़मीन के दरमियान है यहाँ वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, लेकिन अब जब ज़मीन के किनारों पोल्स की तरफ जाएंगे तो वाटर वेपर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं आइसोलेशन फ्रॉम द सन, यानी हीट जो सन से आ रही हो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और प्रिवेंट करते हैं ज़मीन को रेडिएशन में। तो ये भी ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं, और इसकी वजह से ज़मीन ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ना बहुत ज़्यादा हीट अप होती है, गर्म होती है। डस्ट पार्टिकल्स, यानी जो एटमॉस्फेयर में काफ़ी मिकदार में कैपेसिटी होती है कि वो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर रखती है, और ये सॉलिड पार्टिकल्स मुख्तलिफ सोर्सेस से फिजा के अंदर दाखिल होती हैं, जिसमें सी साल्ट्स हैं और फाइन सॉइल यानी बारीक मिट्टी है, स्मोक धुआं, सूट कालक, और इसी तरह राख और पोलन ग्रेन्स जो फूलों से निकलती हैं, और डस्ट पार्टिकल्स, ये सब के सब डिसइंटीग्रेट पार्टिकल्स यानी बिखरे हुए ज़र्रात जो मेट्योर से आती हैं, जो फिजा से खला से ज़मीन में दाखिल होती हैं पत्थर की शक्ल में। तो ये डस्ट और साल्ट पार्टिकल्स ये एक्चुअली एग्रोस्कोपिक होते हैं। एग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि ये नम जज्ब करने वाले, नमी को जज्ब करने वाले। तो इससे होता क्या है कि वाटर वेपर्स जो फिजा में उड़ रहे होते हैं वो इन पार्टिकल्स के गिर्द जमा होते हैं, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादल बनने का अमल शुरू होता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को। तो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला जो ज़मीन के करीब है वो ट्रोपोस्फेयर है। ये लेयर ज़मीन के बिल्कुल करीब होती है, यानी जहां हम चलते फिरते हैं यहाँ से स्टार्ट होती है और 10 से 15 किलोमीटर ऊपर तक जा रही होती है, और ये 75% एटमॉस्फेयर का मास रखती है, यानी जितना एटमॉस्फेयर का वजन है 75% इसी पहले लेयर के अंदर है। टेम्परेचर और प्रेशर इसमें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम होना शुरू हो जाएगा। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ज़मीन के मुख्तलिफ लेयर्स को, कि ज़मीन की सतह एक सतह ट्रोपोस्फेयर है जहाँ जहाज वगैरह उड़ते हैं, उससे ऊपर की तरफ स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर वहाँ से आगे जाएंगे तो मीजोस्फेयर है, उससे आगे जाएंगे थर्मोस्फेयर है, और लास्ट में एक्सोस्फेयर और आयनोस्फेयर वगैरह है। अब हम आते हैं ट्रोपोपास। ट्रोपोपास क्या है कि जब ट्रोपोस्फेयर यानी ज़मीन की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर ख़त्म हो रहा होता है उस इलाके को ट्रोपोपास कहते हैं। ट्रोपोपास यानी ट्रोपो यहाँ पर पास रुक जाएगा, तो बहुत एट वेरी टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर भी जब ऊपर जाएंगे जहाँ टेम्परेचर तकरीबन कम हो जाता है। कुछ साइंसदान इस इलाके को ट्रोपोपास यानी कोल्ड ट्रैप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस इलाके में पानी के जो वेपर्स होते हैं वो यहाँ पर पहुंचकर बिल्कुल आइस बन जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इस तरह
पानी के वेपर्स इस एरिया से बाहर खला के अंदर नहीं जा सकते, और अगर ये ट्रोपोपास का इलाका ठंडा ना होता तो पानी के सारे वेपर्स खला में चले जाते और ज़मीन पर पानी की मिकदार कम होना शुरू हो जाती। तो एयर टेम्परेचर ट्रोपोपास में तकरीबन -80 सेंटीग्रेड पे चला जाता है, यही टेम्परेचर यहाँ पर ड्रॉप होकर -80 हो जाता है इक्वेटर पे, और -45 होती है तकरीबन पोल्स पर, और टेम्परेचर यहाँ पर तकरीबन कांस्टेंट रहता है, यानी 80 के करीब, -80 के करीब। अब सेकंड नंबर पर जो लेयर है ट्रोपोपास से ऊपर स्टार्ट होने वाला स्ट्रेटोस्फेयर है, और ये लेयर डायरेक्टली ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है तकरीबन 35 किलोमीटर तक। ये 15 से 50 किलोमीटर तक सतह से जमीन के ऊपर हो सकता है, और इसका लोअर पोर्शन स्ट्रेटोस्फेयर का तकरीबन कांस्टेंट टेम्परेचर रखता है, और बुलंदी के साथ साथ इसकी टेम्परेचर में यानी ज्यादती होती जाती है, क्योंकि ऊपर की तरफ सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है ओजोन के अंदर। स्ट्रेटोस्फेयर में एक थिन लेयर होती है ओजोन की, जो सूरज की हार्मफुल यानी अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर देती है और इस तरह जमीन को सूरज की खतरनाक शॉ से बचाती है। ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीटेड, कम होता जा रहा है, इसमें कमी आ रही है यूरोप और एशिया और नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह यूज करने की वजह से। तो स्ट्रेटोपास वो एरिया है जहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होने लगता है। तो ये जो है बाउंड्री है दो लेयर्स के दरमियान, यानी ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर बीच में। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है इससे आगे मीजोस्फीयर शुरू हो जाता है, जहां पर टेम्परेचर और भी ज्यादा बुलंद होना शुरू हो जाता है। तो अब मीजोस्फीयर को देखते हैं। मीजो का मतलब है दरमियानी स्फीयर, और मीजोस्फीयर ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है और 80 किलोमीटर बुलंदी तक मौजूद है जमीन की सतह से, और यहाँ पर टेम्परेचर दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि बुलंदी के साथ साथ, और यहाँ तक कि टेम्परेचर यहाँ पर -100 सेंटीग्रेड तक चला जाता है 80 किलोमीटर की बुलंदी पर। इसके बाद स्टार्ट होता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के नाम से ज़ाहिर है थर्म हीट वाला स्फीयर। ये 80 किलोमीटर से ऊपर स्टार्ट होता है, और चौथा लेयर है जमीन के ऊपर का, और ये मीजोस्फीयर से ऊपर होता है और ये काफी पतला होता है, और टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इस वजह से हाई होगा क्योंकि यहाँ पर जो सोलर एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है, सूरज की हीट बहुत ज्यादा होती है, डायरेक्ट सूरज की हीट पड़ रही होती है, यहाँ तक कि यहाँ पर टेम्परेचर 1500 सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। इसके बाद है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर थर्मोस्फीयर से ऊपर एक इलाका है, तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर तक, 80 किलोमीटर से ऊपर, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के चार्ज पार्टिकल्स आयंस वगैरह मौजूद होती हैं, इसलिए इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। रेडियो वेव्स जो जमीन से ट्रांसमिट होती है जाती हैं ऊपर की तरफ, वो इसी आयनोस्फीयर में टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और जमीन की तरफ आती है। यहाँ पर भी हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लास्ट में है एक्सोस्फीयर। एक्सो कहते हैं बाहर को, यानी सबसे बैरूनी स्फीयर। तो ये अपर मोस्ट लेयर है या लास्ट लेयर भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स बहुत ही फास्ट मूव कर रहे होते हैं और वहाँ के मॉलिक्यूल्स एस्केप वेलोसिटी को अटेन करते हैं। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है जमीन की ग्रेविटी से निकल जाने वाली वेलोसिटी। तो मॉलिक्यूल यहाँ जमीन से निकल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।